स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हाय एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा और आई वेलकम यू ऑल हियर। जैसे कि आपने देख लिया होगा, द टॉपिक टुडे इज व्हाई यू एक्चुअली फेल्ड इन प्रीलिम्स। फर्स्ट थिंग बहुत क्लियरली बोल दे रहा हूं, आई विल नॉट बी apologetic. The point is this: in the age of social media there are so many disturbances, distractions जो कहीं ना कहीं हमेशा hampers that urge in you to keep you focused. One common thing between Bill Gates and the Warren Buffett is they both largely advocated in two separate interviews that the most important factor for their success was focus. Next 5 to 10 minutes lunga. Do see this lecture and pause it whenever required and just do dwell on this. We often fail in these examinations, competitive examinations, be that IIT, be that UPSC, or be that any form of competitive examinations, but we often do not dwell upon our failures. What are the various causes of our failures? Do you ever understand this? That you are the best person to understand the causes for your failure. If people like me are making such videos here why you failed in your prelims, then I personally think that you're failing in your life. Forget about the prelims. Prelims is just a part, and in fact, a molecular part of your life. If I have to tell here why you are failing, then definitely you deserve to fail. Sorry to say this, but yes, someday someone has to, shake you up to make you understand that things are not as it looks like. What could be the major reasons? This is personal opinion of mine, but remember this. This personal opinion is not developed just because of sitting in an armchair and developing one thought कि student क्यों fail हो रहे हैं, नहीं. The process through which you are going today is the process which I have gone through. Maybe, fortunately or unfortunately, you were not able to crack this prelims. Fortunately, I was able to crack the prelims for multiple times, mains for multiple times. In fact, all the attempts. And I was able to reach to that last leg. And on the basis of these constant failures which I faced, you are facing at the first stage, I faced at the final stage. I learned certain things about civil services. Many of you would have seen different forms of videos. Many people after the result were out, motivation video, sir हो नहीं रहा है, sir कैसे किया जाए, क्या strategy होनी चाहिए. आपको सब पता है यार, accept करो ये चीज. जस्ट दैट आपको उसकी ऑथेंटिफिकेशन चाहिए होती है. जैसे सरकार एक नियम पास करती है, वो नियम लागू हो गया है टेक्निकली, बट सिर्फ प्रेसिडेंट का एक स्टैंप चाहिए होता है इन ऑर्डर टू टेक्निकली गिव इट अ लेजिटिमेसी. इफ यू वांट सच लेजिटिमेसी, देन आई एम गोइंग टू जस्ट बी वेरी ब्लंट. थोड़ा सा रूड रहूंगा, बट आई होप दैट द टीचर्स टुडे डू हैव दैट sphere of autonomy to be rude with the students, so that at least at the end somebody would stand and say, yeah, somebody said me this and I did not actually follow that. Because this is all greenery outside, things are completely different. क्या major reason है? Obviously your reasons would be way different, could be multiple reasons, but the two biggest common reasons which I see among the aspirants why they are constantly failing in prelims. I have my own student जिन पे मैंने सोशोलॉजी से शिद्दत से मेहनत की, मेंस जीएस उनको शिद्दत से मेंटर किया, आंसर राइटिंग सिखाई, और उनका 4-5 साल से प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है. आपको नहीं लग रहा कि जब आपका प्रीलिम्स फेलियर होता है तो एक ऑप्शनल टीचर का या जीएस मेंस के टीचर का भी उतना ही बड़ा फेलियर हो जाता है, बिकॉज उसकी भी सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है, बिकॉज उनके बच्चे, उनके स्टूडेंट्स एग्जाम मेंस तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं. क्या फायदा उस सोशियोलॉजी को इतनी बढ़िया से पढ़ाने का, या जीएस मेंस को मेंटर करने का, या आपको आंसर राइटिंग सिखाने का. तो लेट्स सी, आई पर्सनली बिलीव दीज आर द टू बिगेस्ट प्रॉब्लम्स. थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, ये दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. आई होप यू नो इट वेरी वेल व्हाई आई हैव रिटन द वर्ड 360 हियर. एक बहुत फेमस मटेरियल है 360. एक बात 2 मिनट जिस भी कुर्सी पे बैठे हो या खड़े होके देख रहे हो या ट्रैवल करते हुए देख रहे हो, 1 मिनट 2 मिनट बैठ के सोचना इस बात को कि क्या 360 होता क्या है. पूरी की पूरी चीज, ये पूरी चीज को सपोज एक आदमी यहां से भागना स्टार्ट करता है, पूरा राउंड कंप्लीट होता है, तब 360 होता है ना.
एक ऑर्गेनाइजेशन आपको आके बोलती है 3 महीने पहले हम 360 भगाएंगे आपको। क्या मैराथन आपको 1 महीने में भागने के लिए पॉसिबल है? जो मैराथन भागने के लिए आपको 12 महीने चाहिए थे, आप 1 महीने में उस मैराथन को भाग रहे हो। हु इज द गॉड डैम कल्प्रिट बिहाइंड योर फेलियर? यू। क्यों? They are there to sell their materials. They are there to keep you in this loop so that they always remain in the loop of profitability. Please make sure कि 360 डिग्री बढ़िया है यार, लेकिन ये उन बच्चों के लिए बढ़िया है जिन्होंने धीरे धीरे पहले मैराथन स्टार्ट की, कवर करते चले गए और लास्ट में उन्होंने पूरा का पूरा 360 डिग्री अप्रोच अपना लिया। ना कि आपके लिए जिनका शायद बेस क्लियर नहीं हो, जो फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में आते हैं, एनालिटिकल स्किल्स नहीं आती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग पावर नहीं आता है, और इस प्रिलिम्स ने आपको अगर कुछ सिखाया या फिर फॉर दैट मैटर मुझे भी बहुत कुछ सिखाया तो यह है कि अब आपको शिद्दत से प्रिलिम्स की अलग से तैयारी करनी पड़ेगी 5-5 महीने। ऐसा नहीं है फरवरी और मार्च में चालू कर दिया और प्रिलिम्स निकल जाएगी। दूसरी चीज, आपको मेंस जीएस के ऊपर होल्ड है तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, नहीं तो अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इनको बैठ के अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हो तो दोस्त वो कुर्सी भी वहीं रहेगी, आप भी वहीं रहोगे और शायद मैं भी यहीं रहूंगा। एंड अगेन नेक्स्ट ईयर आई विल बी मेकिंग द सेम वीडियो एंड यू विल बी वाचिंग हियर। 360 is only going to be useful when you have covered every degree here. Directly coming to 360 is absolute blunder in your preparations. You better accept it today, or maybe do not accept it. That's okay. But at least follow this magazine only when you have followed religiously the newspaper, because the problem is people, students or aspirants largely use the newspaper in order to develop the content. No, that's not the ultimate motto of newspaper, because notes तो आपको 360 में ज्यादा बेटर मिल जाएंगे, लेकिन ये जो एनालिटिकल ब्रेनस्टॉर्मिंग कैपेबिलिटीज है जो आपको शायद चाहिए होगी इस एग्जाम के लिए, क्योंकि ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं, आपको चॉइस वाली चीजें नहीं मिल रही है, एलिमिनेशन टेक्निक की बात लोग डेथ बेल बता रहे हैं। इस समय में आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग पावर चाहिए होगी, एंड इफ यू in order to develop that brainstorming power, you would have to largely first read newspaper, because the ultimate motto of newspaper in UPSC preparation is to develop your analytical abilities and brainstorming capacities of your mind. And then if you study those notes, it is going to give you an enormous pleasure. At the same time, it's going to contribute to the success which you are largely wanting. And the second biggest issue which I personally feel is that almost all of you are in your comfort zone. आपको एक एग्जांपल से देता हूं कंफर्ट जोन के। जब मैंने ये 360 डिग्री अभी डिस्कस किया पिछले 30-40 सेकंड के अंदर, एक चीज कई स्टूडेंट के दिमाग में आई होगी, नहीं सर ये क्वेश्चन जो है इस 360 से आया था, सर ये 4 क्वेश्चन जो है इस 360 से आया था, या फलानी 180 से आया था। पता प्रॉब्लम क्या है? आप जस्टिफाई करना चाहते हो कि आप राइट हो। 4 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन आ गए, आपने ये क्यों नहीं सोचा 94 क्वेश्चन तो इस 360 में कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे थे, इट वाज लाइक अ गोस्ट वेपराइज्ड। नहीं, हमें 4 देखना है। क्यों पता है? बिकॉज यू डू नॉट हैव द कैपेसिटीज टू वर्क हार्ड एंड डू एंड रीड द न्यूज़पेपर, बिकॉज पता नहीं है शायद आपको कैसे पढ़ा जाए। मैं नहीं बोल रहा हूं इनकेपेबल हो, मैं ये बोल रहा हूं कि शायद आप अपनी चीजों को जस्टिफाई करते चले जा रहे हो और वो सेम स्ट्रैटेजी अगले साल आप यूपीएससी के सामने रख देते हो, एंड दैट डजंट वर्क। So the point is, come out of your comfort zone. There are certain toppers who actually could be considered as nonsensicals. They say that they do not have a love for note making. Come on guys, don't misguide student. ऐसा कौन सा टॉपर है जो बिना नोट्स के क्रैक करके बैठा एग्जाम? और जिन्होंने किया है वो 3-3, 4-4 अटेम्प्ट के बाद में कर रहे हैं क्रैक। इसका मतलब उन्होंने 3 साल इतनी अच्छे से पढ़ी और उसकी समरी वर्जन इतनी अच्छे से बन गई कि उन्हें नोट्स की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब आप ये टॉपर्स को रिक्वेस्ट है मेरी, जब आप ये बोलते हो कि नोट्स नहीं बनाए, वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला कभी नोट्स नहीं बनाता और कभी भी जाके उसका एग्जाम अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं हो पाता है। A serious request to all of you guys, please tell your right strategy when you are talking here, because lakhs of aspirants are actually losing hope. Lakhs of aspirants are actually, largely putting their dreams in the coffins. At least have that. You gave the paper of ethics, guys. At least show that 10% of ethics here. Because without note, मेरा पर्सनल मानना, I can debate with any goddamn topper here or any goddamn member of civil services of UPSC. Without note, it's not technically possible to crack these examinations, because when the syllabus is so big, how is it possible that you are going to do your revision? एक सिंपल सा लॉजिकल तर्क पे चलते हैं। आप बोलते हो कि रिविजन इंपॉर्टेंट है,
मान लिया 100% इंपॉर्टेंट है, रिवीजन तो वर्ल्ड में किसी भी चीज को करने के लिए इंपॉर्टेंट है। योगा भी सीखते हो, मेडिटेशन भी सीखते हो तो रिवाइज करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, बस वर्ड चेंज हो जाता है। यहां पे आप रिवाइज करते हो। अब मुझे एक सीधी सी बात बताओ, प्रीलिम्स से 1 महीना या 20 दिन या 25 दिन या 5 दिन पहले जब आप अपनी किताब लेके बैठे हो, किस किस चीज को रिवाइज कर लोगे यार? वो 35 एनसीईआरटी सामने पड़ी रहेगी, वो 12 360 डिग्री पड़ी रहेगी, वो 10 योजनाएं पड़ी रहेगी और 12 कुरुक्षेत्र पड़ी रहेगी और फलाना ढिमकाना मटेरियल पड़ा रहेगा। देयर वुड बी सो मेनी मटेरियल प्रेजेंट ऑन योर टेबल टॉप। What are you going to revise? Just sit down logically and answer this question to yourself, and you would be an inch closer to the success, at least in next 2024 examinations, because it's the right time to prepare your notes. Just sit back. क्या रिवाइज करोगे आप? ये सारी किताबें हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है ये हो जाएगी, then you definitely have that photogenic memory. I appreciate that. But at least majority of the people who are watching this, they would definitely not have a photogenic memory, because if that was the case, then the majority of the Indian population wouldn't have been fit for unemployment. यार notes नहीं है, नहीं होगा। Come out of your comfort zone, at least for that 1 year. Start working hard, because this smart work is goddamn a gimmick. And a person can become smart only on those things on which he has worked hard. ये चीज बहुत अच्छे से समझो, चाहे वो नोट्स मेकिंग हो, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट पे हो। आई एम प्रीटी मच श्योर मेजॉरिटी यू एंड मेनी टाइम्स मी एज वेल, वी पुट अप आवरसेल्फ इन कंफर्ट जोन। जब बहुत सारी सोशियोलॉजी पढ़ाता हूं, बहुत सारे जर्नल्स मेरे पास जब आते हैं, तो कई बार मैं कोई आर्टिकल छोड़ देता हूं, अरे यार कौन पढ़ेगा, ये मेरा कंफर्ट जोन है, अरे अब इतना कौन पढ़ेगा, कम आउट ऑफ इट। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर प्रॉब्लम तो समझ में आ रही है, एटलीस्ट मेजॉरिटी में ये कॉमन मिलेगा भी आपको, वे आउट है क्या, कोई तरीका है क्या इसको बाहर निकलने के लिए? ये मेरा पर्सनल व्यू है, द एंटायर वीडियो इज माय पर्सनल व्यू। आई एम नॉट गोइंग टू लार्जली प्रमोट एनीथिंग एज सच हियर, बिकॉज दिस इज कंप्लीटली टू मेक यू अंडरस्टैंड सर्टेन निटी-ग्रिटीज ऑफ सिविल सर्विसेज प्रिपरेशंस बिफोर यू गॉट दैट जंप इनटू दिस एक्सरसाइज ऑफ प्रिपरेशन। कोई तरीका है? अब एक आपको सिंपल सा एस्पेक्ट समझाता हूं, ध्यान से समझना। कुछ टॉपर्स है, आई हैव जस्ट यूज्ड देयर नेम्स एज अ पब्लिक फिगर। टीना दाबी मैम, बहुत अच्छे से इन्होंने टॉप किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ। इशिता द प्रेजेंट टॉपर इज ऑल्सो लार्जली, चाहे थर्ड अटेम्प्ट में ही हुआ हो, बट अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक आई। क्या चीज कॉमन है इनमें यार? जो मेरा पर्सनल एनालिसिस है वो मुझे ऐसा लगता है, इट इज द मेंटरशिप विच इज मोर इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। सर मेंटरशिप इनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ, 4 से 5 साल तैयारी करने के बाद। बैकग्राउंड इनका देखोगे तो मॉम डैड जो है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, और वो भी क्लास 1 ऑफिसर्स। इनका क्या सर? इनका इसलिए कि 2 अटेम्प्ट के फेलियर इनके पास थे। 2 अटेम्प्ट के फेलियर के बाद में इन्होंने सेल्फ मेंटरशिप की। शी रियलाइज्ड व्हाट आर द मिस्टेक्स, what are the possibilities of cracking this examinations, how to crack, what needs to be improved. एक होता है self mentorship, एक होता है mentorship of by external factors, maybe by the teachers, maybe by the colleagues, maybe by the parents, or including even the self mentorship if there is any. But I think this is the test case for mentorship given by certain persons who are largely related to you. ये self mentorship दोनों में common है mentorship। अब प्रॉब्लम आप लोगों के साथ क्या है, आप मटेरियल पे भागते हो। मैं आपको एक जैक मा का एक वीडियो देखा था, उसके अकॉर्डिंगली आई जस्ट वांट टू टेल यू दिस। ही सेज दैट इफ यू आर इन द एज ऑफ 20 to 30, फाइंड द राइट बॉस नॉट द राइट कंपनी। कहने का मतलब वो कंपनी में मत जाओ जो आपको ज्यादा पैसा दे रही है, वो उस बॉस के पास जाओ जहां से आपको सीखने के लिए कुछ मिले। क्योंकि 20 से 30 साल में अगर आप चीजें सीख लोगे तो शायद 30 से 40 साल के अंदर यू कुड बी द जैक मा वर्जन 2। और 10 से 20 अब 20 से 30 साल के बीच में अगर आपको अच्छे पैसे मिल रहे हैं और शायद आपका बॉस राइट मेंटरशिप नहीं दे पा रहा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी योर जॉब वुड स्टैग्नेट आफ्टर 20 years or 15 years down the line. The level of growth or mobility which you are going to experience is only going to be relative, goddamn, not absolute. मतलब जैकमा ने क्लियरली बोला कि आपके पास राइट बॉस होना चाहिए इस उम्र में। सिविल सर्विसेज में ये बॉस तो नहीं होते हैं, बट एक मेंटर्स होते हैं। तो आज अगर कोई चॉइस कर रहा है कोचिंग ज्वाइन करूं कि नहीं, ऑप्शनल कौन सा लेना है, या वेरियस अदर एस्पेक्ट्स अगर हम देखें, तो यू शुड लार्जली एंश्योर दिस दैट यू हैव द राइट मेंटरशिप। जस्ट अ सेकेंड।
you should focus not on the name of the organization, not on the content of the organizations, because the material is so freely available that anywhere you will largely get the same amount of good material. But if there is a person who is ready to sit with you, guide you, mentor you, this mentorship is going to help you to not only understand the content, but it will also help you in order to largely have the right perspective for the preparation, right approach and strategy for your goal. And at the same time, he will make you understand the usability of content, how a simple content can be used in a multiple forms. So I really request you guys, whether you are part of any coaching institution or not, whether you're trying to prepare self or not, if you're preparing, if you're not able to afford a coaching, make your failures as your mentor. जब एक पेपर आंसर लिख के आओ, उस आंसर के साथ जितना टाइम लिखने में दिया उतना ही टाइम उसको इवैल्यूएशन खुद करने में दो. ये ब्लेम मत करो कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं कर रही है. क्यों करेगी यार? कौन हो तुम उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए? आई एम सो ब्लंट हियर. आर यू कित एंड किन? नो. सो एवरीबडी को शायद वो उतना इक्वल अटेंशन देने लगेंगे तो आई थिंक देयर ऑर्गेनाइजेशन विल जस्ट ट्रम्बल डाउन. दे हैव अ डिफरेंट मोटिव, यू हैव अ डिफरेंट मोटिव. Sit and give that time by yourself कि यार प्रॉब्लम कहाँ है, यहाँ पे कौन सा इंप्रूवमेंट है, एंड मेक श्योर कि 10 मिस्टेक्स जो आपने की आंसर राइटिंग में अगले टेस्ट में नहीं करोगे. फिर अगले में 10 होगी, वो 10 थर्ड में नहीं करनी है, फोर्थ में नहीं करनी है. बाय द टाइम ऑफ दोस टेस्ट सीरीज यू विल सी दैट ऑलमोस्ट 100 errors of yours are taken care of, which were having high probability of getting represented in your GS mains paper. सेकंड, जब मेंटरशिप आपके पास होगी तो कभी भी जो ये स्ट्रेसफुल लाइफ चल रही है ना आपकी, वो खत्म हो जाएगी. एक डायरेक्शन रहेगा, एक मोटिवेशन रहेगा, एक चीजें बनी रहेगी. बिकॉज इट्स नॉट द वर्ड्स विच मैटर्स, इट इज द वर्ड्स सेड बाय द राइट पीपल एट द राइट टाइम विच कैन एक्चुअली एक्ट एज इंस्पिरेशन टू यू. छोटी छोटी चीजें इंस्पायर कर जाती है अगर सही वक्त पे आपको बोली जाए. तो प्लीज मेक श्योर, इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज, फाइंड दैट राइट मेंटर. Many times it often sees that we go to the organizations on the basis of the big names, and these big names do not have the right teachers who can give the right time to the people. Find a mentor. Could be anywhere in this world, could be your teacher, could be your graduation college or school teachers, or could be your parents or colleagues. बैठो, mistakes देखो अपनी, and then you will come to the right place. So it's my sincere request to all of you, before framing any strategy for 2024 examination, dwell upon these 2 points. किस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए. 5 दिन 2 स्ट्रैटेजी बनाने में, उसके बाद जब तैयारी चालू करोगे तो आपके कम से कम 500 दिन अगले बचने वाला है. Because you will not be giving the next attempt then. And maybe I will be standing with you here and talking about how did this actually video help you to largely get your goal. So please guys, it was just an open heart conversation with you. आई होप ये मेंटर के ऊपर आप फोकस करो, बिकॉज सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम में, लाइफ में या एग्जाम में एक राइट मेंटर बहुत जरूरी है. जैक मा ही नहीं मानते हैं, मैं भी मानता हूं, और आई एम प्रीटी मच श्योर आप या आपके रिश्तेदार, नातेदार, पेरेंट्स या कलीग्स ये मानते होंगे. तो आज से सर्च चालू करो राइट मेंटर की, ना कि राइट ऑर्गेनाइजेशन की. बिकॉज इफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन गिव यू द मेंटरशिप, देन यू आर एट द राइट पाथ. एंड इफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर गिविंग यू द कंटेंट, नॉट द मेंटरशिप, देन definitely I believe that you are not in a right path, whichever organizations it could be. Thank you so much and really, Jai Hind. दिल नहीं टूटना चाहिए, स्पेशली जो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में आ रहे हैं. अरे यार जर्नी थी, पार्ट मान के चलो फेलियर्स को, एंड दिस फेलियर्स डेफिनेटली वन डे विल टेक यू अहेड. अब मुझे नहीं पता अहेड का मतलब क्या है, ये क्या मोटिवेशन लग रहा है, फेक मोटिवेशन लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है यार. 4 बार फेलियर होने के बाद कॉन्स्टेंटली इंटरव्यू के अंदर मैं आज आपके सामने यहाँ खड़ा होकर एटलीस्ट लेक्चर दे रहा हूँ, अर्निंग एटलीस्ट गुड अमाउंट ऑफ मनी इक्विवेलेंट टू मे बी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट पर्संस. क्यों? शायद मेहनत रंग लाई, मे बी डायरेक्शन कुछ अलग रहा, बट यस इट गिव्स यू दैट प्लेजर, इट गिव्स यू, इट कम्स टू काम आएगी यार. इट्स ओके इफ यू हैव फेल्ड. Thank you. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.